Namaste everybody. I am Vijay Kumar. Today I am going to share with you one of the chapter of B High book class 9 CBSE board, The Little Girl by Catherine Mansfield. About the author, Kathleen Mansfield Murray was a prominent New Zealand modernist short story writer and poet who was born and brought up in colonial New Zealand and wrote under the pen name of Catherine Mansfield. She was born on 14th October 1888, Wellington, New Zealand, died on 9th January 1923, Fontainebleau, France. Her full name was Kathleen Mansfield Champ. Her famous short stories are The Garden Party, Miss Brill, The Doll's House, The Fly, Bliss, etc. Introduction to the Little Girl. The title of the story refers to the main character that will come across, the little girl named Kezia. The theme of the story is the relationship between children and their parents. The writer Catherine Mansfield wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. Although, when children are small, when they are young, they do not feel their parents love them because their parents are strict and many actions of the parents seems unjustified. But as children grow up, they realize that all the acts done by their parents were beneficial for them. The parents were concerned for them, and beneath the strictness lies a heart full of love for the children. And this bond of love between parents and their children has been highlighted through this story. Before you read, do you feel you know about your parents better now than when you were much younger? Perhaps you know now understand the reasons for some their actions that used to upset you earlier. This is a story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. Now we are going to start the chapter. The little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. इस स्टोरी में एक ऐसी छोटी लड़की है जो एक फिगर से बहुत डरती है और वो फिगर है उसके पिता का। हर एक सुबह उसके पिताजी जब ऑफिस जाते हैं तो उसके कमरे में आते हैं, प्यार से उसे एक किस लेते हैं और गुड बाय बोल करके चले जाते हैं। लेकिन इस छोटी लड़की के चेहरे पे एक डर का भाव जमा रहता है। जैसे जैसे उसके पिताजी कैरेज में घोड़ा गाड़ी में चढ़ के दूर जाते हैं, घोड़े गाड़ी की आवाज़ कम होती जाती है, लड़की खुश होती है। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." जब शाम होता है उसके पिताजी लौट के आते हैं। लौट के आने के बाद उनकी कर्कश ध्वनि उस बच्ची को सुनाई पड़ती है। उस समय वो बच्ची प्रत्येक दिन सीढ़ी के पास खड़ी रहती है। उसके पिताजी का पहला इंस्ट्रक्शन होता है, एक कप चाय लाओ, पेपर लाओ, मैं पेपर पढ़ना चाहता हूँ, और उसके बाद मेरा स्लीपर कहाँ है, स्लीपर लेके आओ। Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. केजिया की माँ
केजिया को ऑर्डर देती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, नीचे आ जाओ, अपने पिताजी का जूता खोल दो। बेचारी धीरे धीरे डरी शामी रूम में आती है, उस ड्राइंग रूम में धीरे से वो पुश करती है दरवाजे को और खोल करके अंदर आ जाती है उनका जूता खोलने के लिए। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तब तक उसके पिताजी के चेहरे पे चश्मा लगा हुआ होता है जिससे वो पेपर पढ़ा करते थे। जब उस चश्मे पे अपने बेटी को देखते हैं तो बहुत डरावना लगता है उस बच्ची को। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. उसके पिताजी कहते हैं, हाँ केजिया जल्दी आओ, मेरा जूता खोल के निकालो, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। वो कहती है, पिताजी मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अच्छी हूँ कि नहीं, लेकिन इस बोलने में वो हकला जाती है। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसके पिताजी उसको ताना मारते हैं कि अगर ऐसे तुम हकलाओगे तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with her father, because then she was trying so hard to say the words properly. केजिया कभी भी किसी दूसरे के पास नहीं हकलाती है, लेकिन जब भी वो पिताजी के पास आती है तो हकलाना शुरू कर देती है। इसके पीछे रहस्य क्या था कि वो डर जाती थी अपने पिताजी के चेहरे को देख करके। What is the matter? What are you looking so rest about? वो पिताजी उसको पूछते हैं, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों दिखती हो, अनहैप्पी क्यों दिखती हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। नरेटर जो है उसके पिताजी अपने माँ से कहते हैं, मतलब उसके ग्रैंड माँ से कहते हैं कि माँ इसको तुम सिखाओ, नहीं तो ये बच्ची एक दिन कहीं सुसाइड नहीं कर ले, क्योंकि इतना अनहैप्पी ये रहती है। केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब वो ऑर्डर देते हैं, केजिया जाओ एक कप चाय ले आओ। ये सब सारी बातें जब होती है तो कितना दुख पहुंचता होगा केजिया को। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। केजिया कहती है कि इतने बड़े थे, उनके हाथ इतने बड़े थे, उसके नेक गले इतने बड़े थे, और जब वो यानिंग करते थे, जम्बाई लेते थे, तो ऐसे लगता था जैसे एक जायंट, एक बहुत बड़ा घोस्ट जो है वो हाथी ले रहा है, और वो डर जाती थी। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। उसकी ग्रैंड माँ एक अच्छी रोल निभाती थी। वो प्रत्येक संडे को केजिया कहती, केजिया जाओ ड्राइंग रूम में बैठो, अपने मम्मी पापा से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्टेच आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन जब भी वो संडे ड्राइंग रूम में जाती थी, उसके पिताजी सोए पाए जाते थे सोफ़ा पर, और माँ पेपर पढ़ती रहती थी, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। और जब वो सोते थे तो अपने चेहरे पे हैंडकरचीफ ढक देते थे और एक कसंस पे अपना पैर रख देते थे और साउंड स्लीप करते हुए स्नोरिंग करते थे, बिल्कुल खर्राटा मारते हैं। नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस पिक्चर दैट हिज फादर वाज स्लीपिंग, कीपिंग हिज लेग्स ऑन द cushions and covering his face with the hanky, and her mother is reading the newspaper sitting on the sofa while Kezia is standing there watching both of them, that anyone can attend to her। कोई उसको देखे लेकिन किसी का ध्यान उस बच्ची की तरफ नहीं जाता है। वो अपने आप को इग्नोर्ड समझती है, ओवरलुक्ड समझती है, दुखी समझती है कि ना मम्मी मेरी ओर देख रही है ना पापा देख रहे हैं। She sat on a stool, gravely raised him, watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। वो बेचारी चुपचाप स्टूल पर बैठ जाती है, उनको शांतिपूर्वक गंभीरता से देख रही है। जब वो उठते हैं, अपने शरीर को सीधा करते हैं, खींचते हैं और पूछते हैं क्या टाइम हुआ। डोंट स्टेयर सो केजिया, आई लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। और जब उसको केजिया देख रही होती है तो उसके पिताजी का कमेंट आता है, ताना आता है, केजिया तुम इस तरह से मत देखो, तुम तो एक ब्राउन आउल की तरह दिखती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। एक दिन
जब वह घर में थी ठंडा की वजह से, तो उसकी ग्रैंड माँ ने उसको कही थी कि तुम्हारे पिताजी का ये बर्थडे आ रहा है, तुम्हें कुछ गिफ्ट देने के लिए कोई काम करना चाहिए। तो उसको सलाह दी उसकी ग्रैंड माँ कि तुम एक पिन कशन बनाओ और गिफ्ट में अपने पिताजी को दो ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क कलर से। लेवरसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच ए 3 साइड्स। तो उसने डबल कॉटन ले ली और बहुत मेहनत करके उसको 3 तरफ से, एक रेक्टेंगुलर साइज होता है उसका कसन बनाना था उस तरह का, एक तकिया जिसे हम कहते हैं पिल्लो के रूप में, तो जो कि हम बैठते हैं तो अपने बैक में रखते हैं सोफ़ा पर। तो 3 साइड वो सीधी, एक साइड खाली रखी कि उसके अंदर हम कॉटन डालेंगे या कोई सामान डालेंगे, तब तो वो रूप लेगा कसन का। बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब एक क्वेश्चन था कि उसमें भरे क्या। दैट वॉज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड wandered into mother's bedroom to look for scraps। उसकी ग्रैंड माँ उस वक्त वही नहीं थी, किससे पूछती कि हम इसमें क्या भरें। चारों तरफ दिमाग दौड़ाई, घूमी, फिर वो अपने मदर के रूप में गई स्क्रैप्स खोजने के लिए। स्क्रैप्स का मतलब होता है फटे चिटे कपड़े या पेपर्स। तो ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गेदर्ड देम up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side। तो लेकिन उसकी अपने माँ के कमरे में जब वो गई तो टेबल पर बहुत सारा अच्छा सा पेपर रखा हुआ था, वो निकाली, देखी रखा हुआ तो लेकर के उसको फाड़ दी छोटे छोटे टुकड़े में करके, और उस पेपर को उस कसन में भर करके फिर चौथा साइड भी सी दी। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब होता है हाय एंड तोबा मचाना। तो उसी रात में घर में बड़ा हाय तोबा हो रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिताजी ने जो एक स्पीच लिखा था पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गायब हो गया था, इसलिए हल्ला गुल्ला हो रहा था। रूम्स वेयर सर्च्ड, हर एक रूम में खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, हर एक नौकर को पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अंत में उसकी माँ केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन योर रूम। केजिया, क्या तुमने उस पेपर को देखी थी मेरे रूम में? ओह येस सी सेड, आई टॉर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो बोली कि मैंने उसको लेकर के सबको फाड़ दिया और उस कशन में डाल दिया। दिस इज द पिक्चर दैट शी वॉज लुकिंग लाइक द ब्राउन आउल। वाट स्क्रीम्ड मदर, उसकी माँ चिल्लाई। कम स्टे डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी तुरंत नीचे आओ तुम। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back। वो अपने बेटी को घसीटते हुए ड्राइंग रूम में ले आई, जहाँ उसके पिताजी दोनों हाथ पीछे करके आगे पीछे हो रहे थे, आगे जाते थे फिर पीछे आते थे एक पॉइंट तक। वेल ही सेड अनहैप्पीली शार्पली, वो बोली, और उसके पिताजी बोले बहुत ही तेज़ी से, गुस्से में। मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड। उन्होंने रोका और बच्चे को देखने लगे। डिड यू डू दैट? नो नो नो, सी इस पर बोली, नहीं नहीं मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड सूट वेरी डिस्टेंट। उसने बोला कि आप जाओ ऊपर जा कर के वो जो काम की है, वो बनाई है, ये फाड़ करके गंदा चीज़ वो ले करके नीचे आ जाओ। दिस इज द पिक्चर shows that how she torn the paper because she didn't know। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। रोते हुए अपने रूम में अकेली थी हुए, रात में जो रोशनी आ रही थी तो एक पैटर्न बना रहा था फ्लोर पे, और अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी। देन फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स। ठीक उसी वक्त उसके पिताजी हाथ में एक रूलर स्टिक लेकर के उसके रूम में घुसे। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा कि तुमने जो गलत काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें पिटाई करने जा रहा हूँ। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स ही पुल्ड देम असाइड। वो क्या की, अपने आप को बेड क्लोथ्स में छिपा ले, बेड शीट में। उन्होंने उसको खींच करके ज़बरदस्ती निकाला और बोला, बैठो, सीट अप हियर ऑलराइट एंड होल्ड योर हैंड्स आउट। हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे टच करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। वो
बहुत हिम्मत करके बोली कि मैंने जो कुछ भी बनाया तुम्हारे बर्थडे के लिए बनाया। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, लेकिन फिर भी उसके पिताजी नहीं माने। छड़ी से उसके पाम पर, उसके हथेली पर पिटाई किए। आवर्स लेटर, घंटों बाद। व्हेन ग्रैंड मदर हैड रेप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, ग्रैंड माँ उसको एक शॉल से उठा करके रॉकिंग चेयर पर, झूलना पर रख दिए। चाइल्ड क्लंग इन टू हर शॉर्ट बॉडी, तो वो बच्ची जो थी वो ग्रैंड माँ को से चिपक गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, रोती बोली कि भगवान पिताजी को क्यों बनाते हैं। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज, उसकी ग्रैंड माँ बोली कि यहाँ पर एक साफ हैंकी है, लेकर के अपने नाक को पोंछ लो, तुम्हारा नाक ब्लो हो रहा है। एंड गो टू स्लीप, और जाके सो जाओ पेट। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाएगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आज वो इतना अपसेट था कि मेरी बातों को भी वो नहीं समझ पाया। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इन टू हर चिक्स। अब अगले दिन से वो इतना डर गई थी कि जब भी अपने पिताजी को देखती थी तो दोनों हाथ पीछे कर लेती थी, और उसके चेहरे पे, उसके गाल पे लाल कलर हो जाता था डर के मारे। Now next scene is here that we are going to read about it. The MacDonald, his neighbor, and now Kichia is finding MacDonald, how he is dealing with his children, how he is playing with his children. अब वह एक अपने पड़ोसी को देखती है, मैकडोनाल्ड जो उसके नेक्स्ट डोर पे रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन फेंस, उसके घर का जो फेंस था, घेरा था, उसके गैप से, बीच से वो देख रही थी। लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग ए टैग इन द इवनिंग, टैग खेला करते। टैग एक गेम होता है जिसमें एक दौड़ता है, दूसरा उसको पकड़ता है। द फादर विद द बेबी माओ इन हिज शोल्डर, उसके पिताजी, माओ के पिताजी के कंधे पर माओ बैठी हुई थी। द 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और दोनों कोट पॉकेट्स है उसमें 2 छोटे छोटे गर्ल्स लटकी हुई थी। राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर, सब हंस रहे थे। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time, और जब बच्चे दौड़ करके उसको पकड़ने का प्रयास करते थे तो दौड़ते थे और आपस में सब हंसा करते थे, मज़ा करते थे। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वेर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब केजिया को इस बात का अनुभव हुआ कि बहुत तरह के पिताजी होते हैं। मेरे पिताजी का अलग स्वभाव है, उसके पिताजी का कितना अच्छा स्वभाव है। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, लेकिन एकाएक एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, तो वो और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलाइस द कुक, और ये छोटी लड़की को कुक के साथ, जो एलाइस नाम था कुक का, उसके साथ घर पर छोड़ दिया गया था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक था। हियर यू कैन सी द पिक्चर दैट केजिया इज वॉचिंग MacDonald, his neighbor, how he is playing along with his children. But while Alice was putting her to bed, the grew suddenly afraid. लेकिन जब रात हुआ, केजिया को उसकी कुक ने जब बेड पर सुलाया तो बहुत डरी सहमी लग रही थी। What will I do if I have a nightmare? वो कहती है, अगर एक बैड ड्रीम आएगा तो मैं क्या करूँगा? She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. हमेशा रात में मेरे को एक दुखद सपना आता है, बैड ड्रीम आता है, और चूँकि ग्रैनी मेरे बगल में रहती तो उठा करके वो मेरे को अपने बेड पे ले जाती थी। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ऐसे लगता है जैसे मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलाइस, एलाइस बोली कि बेटा जाके चुपचाप सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसका सॉक्स खोलते हुए, डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा, तुम चिल्लाओ नहीं और ना ही अपने पिताजी को जगाओ। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर came with a knife and rope, who came nearer and nearer, smiling the dreadful smile, while she could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see her beside her bed, a candle in his hand. Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He was out the candle, bent down and caught up in his arms, carrying her along the passage
In his big bedroom, a newspaper was on the bed, and he put away the paper. Then, carefully tucked up child, he lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about it. Seemed crept close to him, snuggled her head under arm, held tightly to his shirt. उसके पिताजी ने जब सुना तो दौड़ के आए, बोले क्या हुआ बेटा? तो वो बताई कि अभी तुरंत मैंने एक दुखद सपना देखा, बुरा सपना देखा। उसमें एक बूचर आया। बूचर उसको बोलते हैं जो जानवर को काट करके बेचता है, जैसे कि बकरा वगैरह को या मुर्गा वगैरह को। तो उनका काम ही होता है काटने का। तो वो एक चाकू लेकर के, एक रस्सी लेकर के आया। ये देख के वो चिल्लाने लगी और बताया कि मैंने ये सपना देखा। उसके पिताजी उसको गोदी में उठाए और अपने बेडरूम में ला करके अपने बेड पर उसे सुला दिए और बगल में आहिस्ते से वहाँ पर वो सो गए। कुछ देर के बाद फिर वो डर गई, और जब डर गई तो वो उनका पूरा शर्ट पकड़ करके उनके कलेजे में चिपक गई। हाउ शी वॉज स्लीपिंग यू कैन फाइंड आउट द पिक्चर हियर। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल। अब अंधेरा कोई माने नहीं रखता था, वो आराम से सोई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। उसके पिताजी ने कहा कि देखो तुम अपना पैर मेरे पैर में रगड़ो, गर्मी आ जाएगी और आराम से सो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। वो अपनी लिटिल गर्ल अपने बेटी के पास आराम से बगल में सोए हुए थे। ए फनी फीलिंग्स केम ओवर हर। एकाएक उसको बहुत ही मज़ेदार अनुभव हुआ। फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। वो सोचने लगी कि मेरे पिताजी उतने बड़े नहीं हैं और इनकी देखभाल करने वाला तो कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। ये बात सही है कि मेरे ग्रैंड मदर से ज़्यादा ये हार्ड हैं, कठोर हैं, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। ये हार्डनेस बहुत अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू ट्राई टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। इन्हें बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता था और प्रत्येक दिन वो ऐसा करने का प्रयास करते थे कि जैसे मैकडोनाल्ड करे। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स। उसे इस बात का अनुभव होता है, ग्लानि होती क्यों उसने राइटिंग्स को फाड़ दिया, चूँकि वो नहीं जानती थी क्या है, इसलिए उसने फाड़ दी थी। सी स्टर्ड सडनली इनसाइड। एकाएक उसका शरीर हिला और शर्मा करके उठ गई। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड हर फादर। पिताजी ने पूछा उसको क्या हुआ, कोई दूसरा ड्रीम देखी है, अनदर ड्रीम? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट। मेरा हेड आपके हार्ट में सटा हुआ है। आई कैन हीयर इट गोइंग। मैं सुन सकता हूँ इसकी धड़कन को। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर। पिताजी आपने कितना बड़ा हार्ट पाया है। अब बच्ची को अपने पिताजी के हार्डनेस भी अच्छी लगने लगी है और उनको समझ पाई। her understanding has developed and she is very happy to listen the sound of his heart. And now both of them have clugged each other, embraced each other. अब उसकी छोटी गर्ल अपने पिताजी के कंधे पे लटकी हुई है और खुश है। मॉरल, द मॉरल ऑफ द स्टोरी द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मानसफील्ड इज़ दैट पेरेंट्स शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू देयर चिल्ड्रन। मॉरल है कि पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चे के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। दे शुड शो देयर लव टुवार्ड देयर चिल्ड्रन इवन व्हेन टू टायर्ड फ्रॉम वर्क एंड डू नॉट हैव टाइम फॉर देम। उनको जब समय नहीं हो या बहुत थके हों फिर भी थोड़ा समय निकाल करके अपने बच्चे की भी बिताना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज डिस्प्ले ऑफ लव हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए लवेबल नर्चरिंग इन्वायरमेंट फॉर द बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। बैलेंस ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन के लिए, संतुलित विकास के लिए, समुचित विकास के लिए ज़रूरी है कि एक पिता को अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ समय निकाल करके देना चाहिए, उनको समझना चाहिए। फर्दर पेरेंट्स शुड नॉट बी ओवर डिसिप्लिन्ड, और पेरेंट्स को ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। एंड हिट देयर चिल्ड्रन फॉर ए स्मॉल मिस्टेक्स, और छोटे छोटे कारणों के लिए अपने बच्चे को मारना नहीं चाहिए। सच इंसेंसिटिव बिहेवियर कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, और ऐसे असंवेदनशील व्यवहार जो होते हैं बच्चे के विकास में बाधक होते हैं। रिजल्ट इन स्टटरिंग, और उसका रिजल्ट होता है कि बच्चे हकलाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ मस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस लाइक बेल।